بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں برج میزان میں 2022 میں ہونے والی تبدیلیوں اور اثرات کے متعلق آپ سے معلومات شیئر کی جائیں گی۔ برج میزان کے لیے روزگار، شادی، دوستی، گھریلو امور، سماجی تعلقات، کیریئر، بیرون ملک سفر، پیسہ، محبت، مذہبی اور روحانی زندگی، تعلیم، نوکری اور دیگر حوالوں سے 2022 کیسا ہوگا، فلکیات کے علم کی روشنی میں آپ کے ساتھ تمام معلومات شیئر کی جائیں گی، لہٰذا آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ مکمل معلومات جان سکیں۔ اور نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز لبرا خواتین و حضرات، آپ کی صحت و توانائی کی صورتحال میں گزشتہ سال سے تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ 2018 سے لے کر 2020 تک آپ پر اس حوالے سے بہت سخت اور کڑا وقت گزرا ہے، لیکن اب آپ پر مخالفانہ اثرات ڈالنے والے دو بڑے سیارے ان نظرات سے باز آ گئے ہیں، اس لیے 2022 میں آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ آپ نے اس بہتری کا کریڈٹ کسی ڈاکٹر یا میڈیسن کو دیا ہوگا، لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ اب سیاروں کی قوت آپ کے حق میں کام کر رہی ہے، ورنہ یہی ڈاکٹر اور دوائیں تو پہلے بھی موجود تھیں۔ صحت اگرچہ اچھی ہے، لیکن ابھی آپ اس پر بھرپور توجہ دیں گے، بالخصوص 11 مئی تک۔ 2022 میں آپ کو ایک مثالی قسم کا روزگار بھی مل جائے گا، ایسا روزگار جس کے خواب آپ ہمیشہ سے دیکھا کرتے تھے۔ معاملات محبت کی بات کی جائے تو 11 مئی کے بعد یہ معاملات بہت بہترین نظر آتے ہیں۔ 11 مئی کے بعد مشتری آپ کے 12ویں یعنی محبت کے گھر میں ہوگا، اور اس کی بدولت کنوارے لبرا افراد کا سنجیدہ قسم کی محبت سے واسطہ پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں شادی تک بات جا سکتی ہے۔ یہ رجحان 2023 تک جائے گا۔ پلوٹو لگ بھگ گزشتہ 20 سال سے آپ کے چوتھے یعنی گھریلو امور کے خانے میں ہے، جس کی وجہ سے گھر کی پوری صورتحال میں انقلابی قسم کی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ جب تک پلوٹو اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا، ممکن ہے آپ کو اپنی فیملی کے کئی ارکان کی جدائی کا دکھ بھی سہنا پڑا ہو۔ بعض لبرا خواتین و حضرات کا موت سے بھی آمنا سامنا ہوا ہے۔ یہ حالات اور اثرات 2022 میں بھی بدستور رہیں گے۔ بہرحال فکر کی کوئی بات نہیں، گزشتہ سالوں کی نسبت آپ کی گھریلو امور کی زندگی میں خوشگواریت نظر آتی ہے۔ زحل 2020 کے اواخر سے آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل بچوں کو کسی طرح کے ڈسپلن کے تحت لانے کی ضرورت ہے۔ انہیں اپنی حدود کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ایک وقت طلب مسئلہ ہے، کیونکہ ڈسپلن ایک حد سے بڑھ جائے تو بہتری کے بجائے خرابی پیدا کرنے لگ پڑتا ہے۔ اعتدال اور توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ نیپچون گزشتہ کئی سال سے آپ کے چھٹے یعنی صحت کے گھر میں ہے اور مزید کئی سال یہاں گزارے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ روحانی علاج معالجے کو زیادہ گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جسمانی صحت کا روحانی صحت سے کیا تعلق ہوتا ہے، یہ بات اب آپ کو سمجھ میں آنے لگی ہے۔ یورینس گزشتہ چند سالوں سے آپ کے 8ویں گھر میں ہے اور مزید چند سال یہیں گزارے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ اپنی جنسی زندگی میں تجربات کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک اچھی چیز ہے، بشرطے کہ آپ کے تجربات تباہ کن نتائج نہ پیدا کر رہے ہوں۔ آپ کا جیون ساتھی اپنے مالی امور میں نت نئے تجربات کرتا نظر آتا ہے۔ معزز لبرا خواتین و حضرات، آپ کا دولت کا گھر 2022 میں قوت میں نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال گزشتہ چند سالوں سے چل رہی ہے۔ آپ بنیادی طور پر اپنے مالی امور سے مطمئن نظر آتے ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ آپ کا مالی امور کا سیارہ پلوٹو برج جدی یعنی آپ کے چوتھے گھر میں قریباً گزشتہ 2 دہائیوں سے مقیم ہے اور 2022 بھی یہیں گزارے گا۔ برج جدی میں مالی امور کے سیارے کی موجودگی ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کی معاملہ فہمی اور سوجھ بوجھ مالی معاملات میں معمول سے زیادہ بہتر انداز میں کام کر رہی ہے۔ آپ روپے پیسے کے حوالے سے طویل مدتی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ کس چیز پر کتنی سرمایہ کاری آگے چل کر سودمند ثابت ہوگی۔ مالی حوالے سے آپ بڑے نپے تلے انداز میں قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو راتوں رات امیر ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اسے بڑے احسن انداز میں سنبھال رہے ہیں۔ پیسے کو اچھے انداز میں سنبھالنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا، اور آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ بھی چکے ہیں۔ پیسے کے حوالے سے آپ کا ڈسپلن نہایت عمدہ ہے۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے اگر ابھی تک آپ نے کوئی طویل مدتی منصوبہ نہیں
बनाया तो कोई बात नहीं, आप 2022 में ऐसा करने वाले हैं जो कि इंतहाई कामयाब शुरुआत होगी। प्लूटो विरासत पर हुक्मरानी करता है। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान आप में से कई एक लिब्रा अफराद को खानदानी विरसे से कुछ न कुछ मिला है और उम्मीद है कि इसके लिए किसी को मरहूम नहीं होना पड़ा होगा। मुमकिन है 2022 में कोई अपनी वसीयत में आपका नाम लिख दे या आपको किसी जायदाद का वसी मुकर्रर कर दिया जाए। बहुत से मीज़ान अफराद नवादरात की खरीदो फरोख्त या फनून लतीफ़ा के हवाले से किसी कारोबार में मुलव्वस हैं। बहुत से जमीन जायदाद के कारोबार में हैं। ये तमाम कारोबार 2022 में आपके लिए इंतहाई मुनाफा बख्श रहेंगे। चौथे यानी घरेलू उमूर के खाने में प्लूटो की मौजूदगी ये इशारा भी देती है कि आप न सिर्फ घर पर पैसा खर्च कर रहे हैं बल्कि उसके जरिए पैसा कमा भी रहे हैं। खानदान वालों की तरफ से आपको अच्छी सपोर्ट मयसर आ रही है। खानदानी ताल्लुकात आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुश्तरी 2021 के अवाखिर से आपके छठे यानी सेहत और काम के घर में मुकीम है। इससे पता चलता है कि आपको रोजगार के मौके मिल रहे हैं। 2022 में आपको अपनी पसंद का रोजगार मयसर आने के कई इम्कानात मौजूद हैं। कैरियर के हवाले से 2022 में कोई खास हलचल नजर नहीं आती। आपका चौथा यानी घरेलू उमूर का खाना कैरियर के खाने से ज्यादा कुव्वत में रहेगा। आपकी ज्यादातर तवज्जो अपनी घरेलू जिंदगी को संवारने और जज्बाती सेहत को निखारने पर मरकूज रहेगी। कैरियर में कामयाबी हासिल हो सकती है, लेकिन मसला यह है कि आपके अंदर ऐसी कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश ही नजर नहीं आ रही, जिसके बगैर कामयाबी इम्पॉसिबल है। चांद आपका कैरियर का सियारा है, जिसकी बदौलत ये रुझान ज्यादा कुव्वत पकड़ता नजर आता है, क्योंकि उमूमी तौर पर चांद घर और घरेलू जिंदगी पर हुक्मरानी करता है। मतलब ये कि 2022 में ज्यादातर लिब्रा अफराद के लिए आपका घर ही आपका कैरियर होगा। आपका चौथा यानी घरेलू उमूर का खाना तकरीबन गुज़श्ता 20 साल से कुव्वत में है और 2022 में भी यही कैफियत बरकरार रहेगी। प्लूटो इस घर में मुकीम है और प्लूटो का काम इनकलाब लाना होता है, मौत और नई पैदाइश के जरिए। ये तजदीद अमल जारी रखता है। अब प्लूटो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा है। शायद उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब तक आप में से अक्सर लिब्रा ख़वातीनो हज़रात नए घर में मुंतकिल हो चुके हैं और फैमिली की सूरत हाल भी बिल्कुल बदल चुकी है। आपको खानदान के अरकान की जुदाई का सदमा भी सहना पड़ा है, खा वो मौत की शक्ल में हो या किसी और वजह से। इस तमाम माजरे का मकसद ये था कि आपको आपकी मर्जी का घर और घरेलू सूरत हाल मयसर आए। जहाँ आपने मौत को देखा है, वहीं कई जिंदगियों को जन्म लेते हुए भी देखा है। कुदरत हमेशा हर नुकसान की तलाफी करती रहती है। आपसे कुछ लेती है तो देती भी है। आपका घर, घरेलू जिंदगी और मजबूरी जज्बाती सूरत हाल अब पहले से कहीं बेहतर है। प्लूटो आपका माली उमूर का सियारा है और चौथे घर में उसकी मौजूदगी कई इशारे देती है। मसलन आप घर वालों और खानदानी ताल्लुकात के जरिए पैसा कमा रहे हैं या आपने घर में ही काम करने की जगह भी बना रखी है। आप अपने घर को बेहतर बनाने पर पैसा भी खर्च कर रहे हैं। ये सिलसिला 2022 में भी जारी रहेगा। अगर आप घर की तज़ीनो आराइश या तामीरो मुरम्मत का इरादा रखते हैं तो 25 जनवरी से 6 मार्च तक के दिन बेहतर रहेंगे। घर की तब्दीली का इम्कान नहीं। अलबत्ता अगर आप नया घर खरीदना चाहें तो कोई रुकावट भी नहीं आएगी। 11 मई के बाद घर की खरीदो फरोख्त में कसीर फायदा हासिल हो सकता है। आपके बहन भाई 2022 में घर तब्दील कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो एक और घर खरीद लें। लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, आपके लिए 2022 में सबसे हसास और तवज्जो तलब मसला आपके बच्चों के हवाले से है। आपकी जिंदगी में शामिल बच्चे 2022 में बगावत और सरकशी पर आमादा नजर आते हैं और उन पर बेचैनी छाई हुई है, इसलिए उन्हें संभालना आपके लिए काफी दुश्वार होगा। आपकी जिंदगी में शामिल बच्चों में मौजूदा रूटीन से निजात हासिल करने और तब्दीली लाने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो रही है। उनकी जज्बाती जिंदगी में खासा अदम इस्तेहकाम भी हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में मराकबा और इबादत उनके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। 2022 का दूसरा हाफ यानी छठे महीने के बाद का पीरियड मोहब्बत के हवाले से आपके लिए निहायत शानदार रहेगा। मुश्तरी की 7वें घर में आमद से आपके रोमांटिक मामलात निहायत खुशगवार रहेंगे। कवारों के लिए सीरियस रिलेशन और शादी के इम्कानात रोशन होंगे। अपने अड़ोस पड़ोस में आपको दिलचस्प लोग मिलेंगे, ऐसे लोग जो पहले से वहाँ मौजूद थे लेकिन आपकी आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई थी।
पड़ोसियों, भाई बहनों और दोस्तों के साथ आपके मेल मिलाप में इजाफा होगा। 2022 में आप ऐसे लोगों से मिलना पसंद करेंगे जिनसे आप कुछ सीख सकें। आप अपने उस्ताद या मजहबी पेशवा की मोहब्बत में भी मुब्तला हो सकते हैं। परदेश में और तालीमी हलकों में भी मोहब्बत के मौके मिल सकते हैं। मोहब्बत के जिस्मानी पहलू की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, मगर इस वक्त आपको सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी मिलाप दरकार है। जरूरी नहीं कि आप महबूब के साथ हर नुक्ते पर मुत्तफिक हों, मगर कम अज कम एक ही सफ़े पर जरूर होना चाहिए। ताल्लुकात की नाकामी की वजह यही होती है कि मोहब्बत करने वालों के अकायद व नजरियात एक दूसरे से हम आंग नहीं हो पाते। दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद लिब्रा अफराद के समाजी मेल मिलाप में भी 2022 में इजाफा होगा। अगर आप कंवारे हैं तो शादी का इम्कान है, और अगर शादीशुदा हैं तो इज़दवाजी ताल्लुकात में रोमांस का अंसर बढ़ जाएगा। और जो लिब्रा खवातीनो हजरात एक से ज्यादा दफा शादी में नाकाम हो चुके हैं, उनकी रोमानी जिंदगी में कोई खास हलचल नजर नहीं आएगी। मिजाजन आप पहली नजर की मोहब्बत में मुब्तला हो जाने वाले लोगों में से हैं। 2022 में ये रुझान बरकरार रहेगा। जिस पर आपका दिल आ गया, आप पूरी सरगर्मी से उसका ताक़ुब करेंगे। कोई अच्छा लगा तो आप बिला तामल उसे बता देंगे। हो सकता है कि आप अपने महबूब के साथ बैरूने मुल्क सफर पर जाएं। नेपच्यून आपके छठे यानी सेहत के घर में मुकीम है, इसलिए आप सेहत के रूहानी पहलू को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जिस्मानी सेहत और रूह के दरमियान गहरा ताल्लुक पाया जाता है। बीमारी जिस्म को लाहक होती है, मगर उसकी जड़ें जिस्म में नहीं बल्कि हमेशा आपकी सोच और महसूसात की दुनिया में पोशीदा होती है। हर तरह की बीमारी उस वक्त जन्म लेती है जब रूह के साथ, रूह फूंकने वाले रब के साथ हमारा ताल्लुक खत्म हो जाता है। मीजान अफराद के मामले में ये कुलिया भी शिद्दत के साथ सामने आता है। खुदा के साथ ताल्लुक मजबूत रखना आपके लिए निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी सेहत पर पड़ता है। इस मौजू पर आप जितना मुतालिया कर सकते हैं कीजिए, और किसी मुर्शिद की रहनुमाई हासिल हो जाए तो क्या ही कहने। जैसा कि इब्तिदा में जिक्र हो चुका है, 2022 में आपकी सेहत अच्छी नजर आती है। आपका छठा यानी सेहत का घर 2022 में भरपूर कुव्वत में है। बाद औकात बीमारी से ज्यादा खतरा आपको बीमारी के वहम से होता है, इसलिए बेहतर ये होगा कि छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा तवज्जो देने के बजाय आप अपनी सेहत के मामूलात का ख्याल रखें और सेहतमंद तर्ज अमल अपनाएं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। आपका सेहत का सियारा गुज़श्ता 10 साल से एक आबी बुर्ज में मुकीम है, इसलिए पानी के शिफा बख्श असरात आपके लिए खुसूसी तौर पर कारामद हैं। सेहत के बहुत से मसाइल तो एक तवील गुस्ल की बदौलत ही हल हो जाते हैं। इसके अलावा कुदरती पानी यानी समंदर, दरिया, झीलों या चश्मों में नहाना आपके लिए बहुत मुफीद होगा। जिस्म के किसी हिस्से में गड़बड़ के आसार हों तो दौरान गुस्ल उस हिस्से पर पानी बहाएं। खुदा आपको तमाम बलाओं से महफूज रखे और हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बुर्ज अकरब के लिए 2022 कैसा होगा? किस्मत कैसे आजमाएगी? खुशियाँ किस दरवाजे से और कब दाखिल होंगी? गैर शादीशुदा अफराद की शादी के कितने इम्कानात हैं? दौलत, रुपया, पैसा, सेहत, घरेलू मामलात 2022 में कैसे चलेंगे? मुश्तरी, मरीख, जोल और यूरेनस क्या असरात डालेंगे? 2022 में क्या क्या नए वाक़यात आपकी जिंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे? ये सब और इसके अलावा खुद से वाबस्ता अफराद के मुतल्लिक मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सेहत और तवानाई की सूरत हाल 2022 में गुज़श्ता साल के मुकाबले में बेहतर होगी, लेकिन तवज्जो की जरूरत बहरहाल रहेगी, इसलिए अपने आराम और सुकून का खास ख्याल रखिए। इससे कत नजर आपके लिए 2022 खुशबाश और तफरीह व मुसरत से भरपूर नजर आता है। आपका 5वां घर भरपूर कुव्वत में है, खुसूसन 11 मई और उसके बाद 29 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक, यानी तकरीबन निस्फ साल। ये जिंदगी की लस्तों से मुस्तफीद होने का वक्त होगा। इसके अलावा आपके लिए तख्लीकी मशागल भी मुफीद रहेंगे। स्कॉर्पियो खवातीन, अगर आप बच्चे पैदा करने की उम्र में हैं तो आपकी जरखेजी में मामूल से ज्यादा इजाफा नजर आएगा। उमूमी सतह पर बात की जाए तो बच्चों के साथ गुजारा हुआ वक्त आपके लिए निहायत पुरमुसरत
और तस्कीन बख्श साबित होगा। आपके माली उमूर 2022 में बेहतरीन अंदाज में चलेंगे, खुसूसन 11 मई और उसके बाद 29 अक्टूबर से लेकर 21 दिसंबर तक। इन दिनों में रोजगार के बेहतरीन मौके आपके मुंतजर होंगे और अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो समझें मिल गया। अगर आप पहले से बरसरे रोजगार हैं तो मौजूदा सेटअप में या किसी और जगह पर बेहतर से बेहतरीन रोजगार के मौके मयसर आएंगे। दिसंबर 2020 से जोल आपके चौथे घर में मौजूद है और 2022 भी यहीं गुजारेगा, इसलिए आपको घरेलू उमूर में किसी कदर दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। आप घर के हवाले से पहले से ज्यादा जिम्मेदारियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। यूरेनस गुज़श्ता चंद सालों से आपके साथ में यानी मोहब्बत के घर में मौजूद है और मजीद चंद साल भी यहीं गुजारेगा। इसकी वजह से आपके इज़्दवाजी तल्लुकात और देरीना मोहब्बत की आजमाइश हो रही है। इस पर मजीद मुश्किल लगने वाले 4 ग्रहण भी डाल सकते हैं। मरीख मामूल से खासा तवील अरसा यानी 4 माह से जायद आपके 8वें घर में गुजारेगा। इसकी वजह से आपकी जिंदगी में शामिल बच्चों के माली उमूर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। प्लूटो जो काफी अरसे से आपके तीसरे घर में मुकीम था, अब रुखसती के सफर पर है। इसके असरात आपके बहन भाइयों और पड़ोसियों पर रहे हैं। इन गुज़श्ता सालों में आपके गिरदो पेश का माहौल गैर मामूली हद तक तब्दील हो गया है। भाई बहनों की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं। कॉलेज से नीचे की सतह के स्टूडेंट्स के सीखने का अमल काफी सुस्त रफ्तार रहा है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी सीखा है बाएसनो खूबी सीखा है। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीनो हज़रात, आपके माली उमूर के स्यारे मुश्तरी की चाल 2022 में रवायत से कुछ हटकर होगी। इससे ये इशारा मिलता है कि आपके माली उमूर में अहम तब्दीलियां रूनुमा होंगी। रुपए पैसे के हवाले से आपके रवैये में तब्दीलियां आएंगी, लेकिन इन सब के बावजूद आपके माली उमूर अच्छे अंदाज में चलेंगे। जब मुश्तरी आपके 5वें घर यानी बच्चों और तख्लीकी सरगर्मियों के घर में मुकीम होगा तो ये नेपच्यून के साथ करान भी कर रहा होगा, जो दीगर तमाम सियारों से ज्यादा रूहानी अंसर का हामिल है। इससे कई इशारे मिलते हैं, मसलन आप किस्मत आजमाई के खेलों में हिस्सा लेंगे और कई मौकों पर कामयाब रहेंगे। बच्चों पर आप पहले से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और मुमकिन है बच्चों ही की वजह से आपको पैसा कमाने का मौका भी हासिल हो। बच्चे छोटे हों तो आपको आगे बढ़ने की तहरीक देते हैं और बड़े हों तो कई तरीकों से आपका हाथ बटाते हैं। बाज़ औक़ात उनकी वजह से आपको मुनाफा बख्श आइडियाज भी मिल जाते हैं। उम्र मुनासिब हो तो उनकी तरफ से माली सपोर्ट भी मुहैया हो सकती है। इसके अलावा आपको रोजगार के खुशकुन मौके मुहैया होंगे और आप उन चीजों पर पैसा खर्च करेंगे जिनसे आपको खुशी हासिल होती है। माली एतबार से ये असरात बहुत पुरमुसरत नजर आते हैं। मुश्तरी और नेपच्यून का करान ये जाहिर करता है कि माली मामलात में आपकी छठी हिस्स बेहतरीन अंदाज में काम करेगी, जो कि पैसा कमाने का शॉर्टकट है। छठी हिस्स का एक दुरुस्त इशारा कई सालों की मेहनत पर भारी पड़ सकता है। अगर आप तख्लीकी फनून यानी आर्ट से वाबस्ता हैं तो आपके लिए 2022 ज्यादा मुनाफा बख्श रहेगा। आपकी तख्लीकी कुव्वत शबाब पर होगी। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, आप बच्चों पर पैसा खर्च करेंगे और उनके जरिए कमा भी सकते हैं और यही सहूलत आपको तफरीही प्रोग्रामों और मौसीकी के हवाले से भी हासिल होगी। तेल, कुदरती गैस, जहाज साजी, माहीगीरी, पानी की फिल्ट्रेशन जैसी इंडस्ट्रीज आपके लिए मुनाफा बख्श साबित होंगी। 11 मई को मुश्तरी बुर्ज हमल में दाखिल होगा, जो कि आपका छठा घर है। 5वें घर में मुश्तरी की कुव्वत छठे घर से ज्यादा होती है, इसलिए आपको पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत दरकार होगी। ताहम आपकी आमदन का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। 11 मई के बाद आप माली उमूर में रिस्क लेने की जानिब भी माइल हो सकते हैं। आप तेजी से फैसला करने और मुमकिन है किसी इन्वेस्टमेंट या खरीदो फरोख्त के मामले में जल्दबाजी का मुजाहिरा करें। ताहम अगर आपकी छठी हिस्स अच्छे अंदाज में काम कर रही हो तो ऐसे फैसले दुरुस्त और देर पास साबित होने लगते हैं। आप पर तेजी से पैसा कमाने की धुन भी सवार होगी, लेकिन आपके लिए मशवरा है कि मोहतात रहिए। नौसरबाज ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं जिन्हें जल्दी पैसा कमाने का शौक हो। हमल में मुश्तरी की आमद ये इशारा देती है कि पैसा कमाने के रवायती तरीके आपके लिए ज्यादा सूदमंद होंगे, न कि गैर रवायती और नए नए तरीके। मुश्तरी की हमल में मौजूदगी हेल्थ इंडस्ट्री यानी अद्वियात साजी, सेहत बख्श ग़िज़ाओं और ऐसी दीगर मसनूआत के लिए फायदा मंद होती है। आपके करियर के हवाले से 2022 में कोई खास हलचल नजर नहीं आती। अलबत्ता आपके लिए घरेलू उमूर की अहमियत ज्यादा रहेगी। आपका 10वां यानी करियर का खाना उमूमी तौर
پر خالی رہے گا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کا چوتھا گھر بھرپور قوت میں ہوگا۔ اس لیے 2022 میں آپ کو زیادہ توجہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں اور جذباتی صحت و عافیت پر مرکوز رکھنا ہوگی۔ یہاں معاملات درست ہوئے تو کیریئر کے معاملات بھی درست رہیں گے۔ آپ کا چوتھا گھر گزشتہ سال سے قوت میں ہے اور 2022 میں بھی یہی کیفیت برقرار رہے گی۔ گزشتہ سال آپ میں سے کئی ایک نے گھر تبدیل کیا تھا، لیکن آپ کو کافی پیچیدگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ 2022 میں آپ کا گھر تبدیل کرنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو ہم آپ کو گھر تبدیل کرنے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ بہتر ہوگا آپ اس وقت جہاں ہیں وہیں قیام کریں اور کسی نہ کسی طرح گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ گھریلو معاملات میں کچھ دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں۔ گھریلو فرائض کو آپ خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری اور صرف ذمہ داری سمجھ کر نبھا رہے ہیں۔ آپ کو کئی مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ پر مزید ذمہ داریاں آ رہی ہیں اور اب آپ کو ان کا بوجھ بھی محسوس ہونے لگا ہے، لیکن آپ ذرا حوصلہ رکھیے اور یہ ذمہ داریاں نبھاتے رہیے، کیونکہ ان سے جان چھڑانا آپ کے لیے مثبت نہ ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ آپ پرانے قرضے اتار رہے ہیں۔ ان مشکلات سے گزر کر آپ کی روحانی نشوونما میں اضافہ ہوگا۔ چوتھے گھر میں زحل کی موجودگی ڈپریشن کے اثرات پیدا کرتی ہے۔ ڈپریشن کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ آپ ڈپریشن سے بچیے۔ مراقبہ اور عبادات اس زمن میں آپ کے بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ زحل آپ کے تیسرے یعنی ابلاغ و اظہار، تبادلہ خیال اور علمی و ادبی مشاغل کے گھر پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھر کو ایک طرح کی درسگاہ کا روپ دے رہے ہیں۔ آپ کی لائبریری میں وسعت آ رہی ہے۔ آپ گھر کے لیے کمپیوٹر اور دیگر ایجوکیشنل انسٹرومنٹس خرید رہے ہیں۔ تیسرا گھر بہن بھائیوں، گھر کے افراد کی حیثیت رکھنے والے دوستوں اور پڑوسیوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ بھائی بہن آپ کے گھر میں 2022 میں بہت سا وقت گزاریں گے۔ پڑوسی بھی آپ کے گھریلو امور میں معمول سے زیادہ دخیل رہیں گے۔ اگر آپ گھر میں بڑے پیمانے پر تعمیر و مرمت یا تزئین و آرائش کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے 6 مارچ سے 16 اپریل تک کے دن نہایت مناسب رہیں گے۔ آپ کے کسی بڑے بزرگ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان پر قنوطیت اور یاسیت کا غلبہ نظر آتا ہے اور وہ خود کو اپنی عمر سے زیادہ بوڑھا محسوس کرنے لگے ہیں۔ ان کے موڈ میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کسی اور بزرگ کے گھریلو امور میں 2022 میں خاصی ہلچل نظر آتی ہے۔ آپ کے بھائی بہن اپنے مالی امور پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور نتیجتاً ان کی خوشحالی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 11 مئی کے بعد ان کے لیے گھر کی تبدیلی کا امکان موجود ہے۔ آپ کے معاملات محبت کی بات کی جائے تو 2022 میں معاملات محبت مشکل میں نظر آتے ہیں۔ یورینس کی 7ویں گھر میں موجودگی کی بدولت رومانٹک ریلیشنز کی آزمائش ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ گہری دوستیوں کی بھی یہی کیفیت رہے گی۔ چند سال بعد جب یورینس یہاں سے نکلے گا تو آپ کے سماجی حلقے کی کیفیت ہی بدل چکی ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ معاشرتی حوالے سے آپ جن بندشوں میں مقیم تھے وہ ختم ہو رہی ہیں، اگرچہ اس عمل سے گزرنا آپ کے لیے ایک ناخوشگوار تجربہ ثابت ہوگا۔ لہٰذا آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں یا کسی سنجیدہ تعلق میں ہیں، انہیں معاملات کو سنبھالے رکھنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہوگی، پہلے سے زیادہ سیکریفائس کرنا ہوگا۔ زیادہ تر لوگ اتنی بھاری قیمت چکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یورینس کے تحت یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون اپنا تعلق نبھانے میں کتنا مخلص ہے۔ اگر آپ کما رہے ہیں تو 2022 میں شادی کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کے معاملات میں بہت زیادہ عدم استحکام نظر آتا ہے۔ موجودہ رومانوی مواقع سے فائدہ اٹھائیے، لیکن کسی بات کو دل پر مت لیجیے۔ ایسے تعلق نبھانے کی ضرورت ہی نہیں جنہیں نبھایا نہ جا سکے۔ محبت کے حوالے سے آپ کے تمام تر سابقہ مفروضے غلط ثابت ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ رومانوی مواقع کہیں بھی کسی بھی وقت اویل ہو سکتے ہیں۔ روزمرہ کے کاموں کے دوران محبت سے آپ کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس محبت کو مستحکم رکھنا ایک دشوار اور وقت طلب کام ہوگا۔ محبت جیسے غیر متوقع طور پر شروع ہو سکتی ہے، ویسے ہی غیر متوقع طور پر ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی رہ جائے، مگر آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوگی جو آزاد رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سنجیدہ تعلق نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یورینس آپ کا گھریلو امور کا سیارہ ہے۔ محبت کے گھر میں اس کی موجودگی سے کئی اشارے ملتے ہیں، مثلاً یہ کہ آپ کی سماجی مصروفیات کا دائرہ زیادہ تر آپ کے گھر اور گھر والوں تک محدود رہے گا۔ گھریلو جھگڑے آپ کے رومانٹک ریلیشنز کو خراب کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ زہرہ آپ کا محبت کا سیارہ ہے جو تیز رفتار پر چلتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے روحانی امور میں کئی مختصر مدتی رجحانات نمودار ہوتے رہتے ہیں، جن کا انحصار زہرہ کی اس وقت کی پوزیشن اور اس کے اثرات پر ہوتا ہے۔ زحل 2021 سے آپ کے چوتھے گھر میں موجود ہے اور اس کے تحت آپ اپنے احساسات کو دبانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ عموماً
عموماً آپ کو دل کی بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لیے آپ خاموش رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پیٹ میں اٹھنے والے طوفان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اپنے جذبات پر قابو رکھنا اچھی بات ہے اور 2022 آپ کو روحانی طور پر یہی سبق دے گا، لیکن کنٹرول کرنا ایک اور بات ہے اور دبانا بالکل مختلف بات۔ انسان اپنے جذبات کو قوت ارادی کے بلبوتے پر ایک نیا رخ عطا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر منفی احساسات ابل رہے ہوں تو کنٹرول رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو منفی جذبات کے اظہار کے لیے پازیٹیو طریقہ ڈھونڈنا ہوگا، کوئی ایسا طریقہ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ منفی جذبات کو ایک دفعہ اپنے وجود سے خارج کر دیا جائے تو پھر کسی مثبت اور تعمیری سوچ کی طرف مائل ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دعا اور وظائف کا سہارا لے سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے دل لگا سکتے ہیں، نفلی عبادات میں پناہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یورینس کا محبت کے گھر میں ہونا روحانی سطح پر آپ کو ایسے اسباق سے روشناس کراتا ہے جو تمام عمر آپ کے کام آتے ہیں۔ اگر آپ کھوئی ہوئی چیز کا غم مناتے رہیں گے تو ملنے والی چیز کی خوشی سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ رونے دھونے کے بجائے جو آ رہا ہے اسے قبول کیجیے۔ آپ کو روح کی طرف سے تخلیقی تحریک مل رہی ہے جس کے تحت کام کرنے میں آپ کو نہ صرف خوشی اور اطمینان حاصل ہوگا بلکہ مالی طور پر بھی کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، 2022 میں آپ کی صحت بہت بہتر رہے گی، لیکن پھر بھی آپ کو احتیاط اور صحت پر توجہ دینا ہوگی۔ جنسی امور میں احتیاط اور اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ سر، تالو اور چہرے کا مساج آپ کے روزمرہ معمول کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس سے نہ صرف چہرے اور سر کو تقویت ملے گی بلکہ پورے جسم کو فائدہ حاصل ہوگا۔ غصے اور خوف سے دور رہنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو باڈی بلڈر بننے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اپنی ایج اور جسمانی کیفیت کے مطابق ورزش کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے گھر کا دروازہ کس سمت کھلتا ہے۔ یہی باتیں آپ کو دنیا و آخرت میں کام آئیں گی۔ میرے حق میں بھی دعا کیجیے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ 2022 برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے لیے کیسا ہوگا؟ سیاروں کی ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقلی اور قیام سے آپ کے حالات و واقعات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ کی زندگی میں کس چیز کی اہمیت بڑھے گی اور کن کن مواقعوں پر آپ کو ذہنی اور دلی طور پر مضبوط رہنا پڑے گا؟ مالی معاملات میں اتار چڑھاؤ اور صحت کی کنڈیشنز 2022 میں کیسی رہیں گی؟ گواروں کی شادی کے امکان اور بے اولادوں کی اولاد کے متعلق ایسٹرولوجی کے علم کے مطابق تمام معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز قوس خواتین و حضرات، 2022 کیریئر کے حوالے سے آپ کی زندگی میں زیادہ ہلچل نہیں لا رہا، لیکن اس کے بجائے آپ کی زیادہ تر توجہ اپنی جذباتی صحت کو بہتر بنانے اور ماضی کی تلخیوں سے نجات حاصل کرنے پر مرکوز رہے گی۔ آپ کا 10واں یعنی کیریئر کا گھر خالی ہے، جبکہ چوتھا یعنی گھریلو امور کا خانہ پورے ذائچے میں سب سے زیادہ قوت سمیٹے ہوئے ہے۔ پلوٹو کم و بیش گزشتہ 20 سال سے آپ کے دولت کے گھر میں مقیم ہے اور یہ 2022 بھی یہیں گزارے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مالی امور میں آپ کی چھٹی حص بہترین انداز میں کام کرے گی۔ آپ کی توجہ ویلفیئر کے کاموں کی طرف زیادہ رہے گی اور آپ انسانیت کی خدمت کے کاموں میں دل جمعی سے اپنا حصہ ڈالیں گے۔ آپ کا مالی امور کا سیارہ گزشتہ سال سے آپ کے تیسرے گھر میں ہے، اس لیے آپ کمیونیکیشن کے آلات یعنی موبائل فونز اور کمپیوٹرز وغیرہ پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور اس فیلڈ سے شاید کچھ نہ کچھ پیسہ کما بھی رہے ہیں۔ آپ کے مالی معاملات 2022 میں ٹھیک ٹھاک چلتے نظر آتے ہیں اور انشاءاللہ 2022 میں ان میں مزید بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور 11 مئی کے بعد اس میں مزید بہتری آئے گی۔ صحت کے حوالے سے آپ بہت سے نت نئے تجربات کر رہے ہیں۔ 11 مئی کو مشتری آپ کے 5ویں یعنی تخلیقی سرگرمیوں کے گھر میں داخل ہوگا اور سال کا بقیہ حصہ تفریح اور ہلے گلے سے آراستہ کر دے گا۔ بچہ پیدا کرنے کی عمر کو پہنچی ہوئی خواتین کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ مریخ آپ کے 7ویں یعنی محبت کے گھر میں غیر معمولی طور پر طویل عرصہ گزارے گا۔ عام طور پر یہ ایک برج میں 1.5 ماہ کے لگ بھگ قیام کرتا ہے، مگر اس مرتبہ اس کا قیام 4 ماہ سے زائد ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کواروں کو رومانوی تعلقات کے معاملات میں کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا
करना पड़ेगा। अलबत्ता जो शादीशुदा हैं उनको अपने ताल्लुक में इख्तियारात की कशमकश का सामना करना पड़ सकता है। आपका दौलत का घर गुज़श्ता चंद सालों से कुव्वत में है, इसलिए इन गुज़रे सालों में आपके लिए पैसे का कोई मसला नहीं रहा और 2022 में भी यूं ही रहने का इम्कान है। अलबत्ता जब प्लूटो आपके दूसरे घर से निकलकर तीसरे घर में दाखिल होगा तो मुमकिन है आपको माली तौर पर चंद बहरानों का सामना करना पड़े। प्लूटो के इन असरात से बचने के लिए आपको फजूल खर्ची से इज्तनाब करना चाहिए। ऐसे साजो सामान से जान छुड़ाना बेहतर है जिसकी आपको जरूरत नहीं, चूँकि प्लूटो दीगर तमाम सियारों से कम रफ्तार पर सफर करता है, इसलिए एक बुर्ज में इसका क़याम 35 साल तक तवील हो सकता है। प्लूटो विरासत का हुक्मरान सियारा है। मुमकिन है आपको खानदानी विरसे में से भी कुछ मिला हो सकता है आपने कोई जायदाद भी खरीदो फरोख्त की हो। आप में से जो हजरात इस उम्र को पहुंच चुके हैं वो अपनी वसीयत लिखने की मंसूबाबंदी भी कर रहे हैं। 2022 में ये रुझानात आप पर गालिब रहेंगे। 2022 में आपके लिए सबसे आम रुझान ये होगा कि आप दौलत के रूहानी पहलू को ज्यादा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे, रूहानी कवानीन को आजमाएंगे और माली मामलात में अपनी छठी हिस्से काम लेंगे। कुदरत हमेशा तवाज़ुन रख कर चलती है। बाज़ औक़ात घरेलू और जज्बाती उमूर की अहमियत ज्यादा होती है और बाज़ औक़ात कैरियर की। 2022 में आप कैरियर से ज्यादा तवज्जो अपने घर, बच्चों, जज्बाती उमूर और क्रिएटिव एक्टिविटीज पर देंगे। आपके कैरियर में खुदा न खास्ता कोई मसला नहीं होगा। अलबत्ता आप खुद अपने कैरियर में इतनी दिलचस्पी ही नहीं ले रहे होंगे जितनी के आम तौर पर आप लेते हैं। आपका 10वां यानी कैरियर का घर खाली रहेगा। अलबत्ता चौथा यानी घरेलू उमूर का घर भरपूर कुव्वत में होगा। इस वजह से आप 2022 में अपने घरेलू मामलात को सुलझाने और संवारने में सर्फ करेंगे। यहाँ पर की हुई मेहनत आगे चलकर कैरियर को बढ़ाने में आपके बहुत काम आएगी। 10वां घर खाली होना मनफी नहीं बल्कि बहुत मुस्बत इशारा है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने कैरियर के हवाले से मुतमईन रहेंगे और किसी तब्दीली की जरूरत ही नहीं महसूस करेंगे। 2022 में हालात जैसे भी हुए आपको रास आएंगे। अतारत जो कि आपका कैरियर का सियारा है निहायत तेज रफ्तारी से चलता है और एक साल में आपके जायचे के तमाम घरों और बुर्जों से गुजर जाता है। इसके तहत आपके कैरियर में कई शॉर्ट टाइम रुझानात नमूदार होते हैं जिनका इन्हसार अतारत की उस वक्त की पोजीशन पर होता है। कौस ख़वातीनो हजरात, आपका चौथा खाना 2022 में भरपूर कुव्वत में रहेगा जिससे साफ जाहिर होता है कि आपके लिए हकीकी तवज्जो और अहमियत आपके घर और घर वालों की होगी। घरेलू हवाले से 2022 बहुत खुशबाश नजर आता है। खानदानी हल्के की वुसअत बढ़ेगी। उमूमन ऐसा नई पैदाइश या शादी के नतीजे में होता है, मगर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे दोस्त मिल जाएं जो घर वालों जैसी हैसियत हासिल कर लें। आपके लिए नया घर खरीदने या पुराना घर बेचने के लिए 2022 इंतहाई मुनासिब साल होगा। ऐसे मामलात में किस्मत आपका साथ देगी। आपको घर तब्दील करने के खुशकुन मौके भी हासिल होंगे। आपको इजाफी घर खरीदने का मौका भी मिल सकता है। यह भी मुमकिन है कि आप घर की तामीर मुरम्मत और डेकोरेशन के जरिए घर को एक नया रूप दे दें। बहरहाल नतीजतन आपको यूं ही महसूस होने लगेगा जैसे आपका घर बदल चुका है। किसी दाना आदमी का कौल है कि माजी मुर्दा नहीं बल्कि ये कभी गुजरा ही नहीं। 2022 में आपको इस कौल की हकीकत समझ आने लगेगी। पुरानी यादें रह रहकर आपको सताएंगी। इन यादों का ताल्लुक सिर्फ आपकी जात से नहीं बल्कि आपके खानदान से भी होगा। तारीख में आपको खुसूसी दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। अपनी जाती तारीख और दुनिया की तारीख में भी आप वाक़यात को एक से तनाज़ुर में देखेंगे और उनकी नई तशरीह भी करेंगे। अगर आप साइकोलॉजिकल थेरेपी करा रहे हैं तो 2022 आपको बहुत फायदा देगा। बहुत से नए इंकिशाफात होंगे। और अगर आप थेरेपी नहीं करा रहे तो घर वालों और दोस्तों के साथ बातचीत भी आपको थेरेपी जैसा ही फायदा देगी। नफ्सियात से जुड़े मामलात बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आने लगेंगे। अगर आप घर की तज़ीनो आराइश का इरादा रखते हैं तो आपके लिए 5 अप्रैल से 25 मई तक के दिन निहायत मौजूद रहेंगे। हल्की फुल्की डेकोरेशन और लग्जरी सामान की खरीदारी के लिए 5 अप्रैल से 2 मई तक का सब बेहतरीन रहेगा। आपके बड़ों में से किसी एक के यहाँ 2022 में बच्चे की पैदाइश मुतवक्की है। एक और बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके माली मामलात 2022 में बहुत उम्दा चलेंगे। वो अपने घर में तज़ीनो आराइश का काम भी कराएंगे। आपके भाई बहनों की जज्बाती जिंदगी गुज़श्ता चंद सालों से अदम इस्तेहकाम का शिकार रही है। मुमकिन है इस अरसे के दौरान उन्हें घर भी तब्दील करना पड़ा हो। ये रुझान 2022 में भी जारी रहेगा। आपकी जिंदगी में शामिल बच्चों के घरेलू मामलात बेहतरीन चलेंगे। सैजिटेरियस ख़वातीनो हजरात, आपकी मोहब्बत
मोहब्बत और जज्बात के हवाले से बात की जाए तो आपकी रोमानवी जिंदगी 11 मई तक मुस्तहकम नजर आती है, लेकिन 20 अगस्त के बाद इस मास पर खासी हलचल देखने को मिलेगी। शादी या संजीदा ताल्लुक के लिए 2022 आपके लिए कुछ ज्यादा मौजून नजर नहीं आता। ताहम रोमानवी मुलाकातों और ताल्लुकात में तफरी और हल्ले गुल्ले के लिए खासी गुंजाइश मौजूद है। कंवारे कौस खवातीनो हजरात शादी के मूड में नजर नहीं आते और आपकी तरफ लोग भी ऐसे ही माइल हो रहे हैं जिनका फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं, शादी के इम्कानात मौजूद नहीं, लेकिन बच्चा पैदा होने के कभी इम्कानात नजर आते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए तुझे अच्छी खबर होगी, लेकिन कंवारों के लिए नहीं। उन्हें इस ज़मन में मोहतात रहने की जरूरत है। सातवें घर में मरीख का क़याम कई इशारे देता है। ताल्लुकात को कोई संजीदा शक्ल देने के बजाय आप उनसे लुत्फ उठाने के ख्वाह हैं। ऐसे ताल्लुकात उमूमन हालात की सख्ती की ताब नहीं ला पाते, यानी जब हालात अच्छे होंगे तो ताल्लुकात अच्छे अंदाज में चलेंगे और जब उतार चढ़ाव की कैफियत होगी तो ताल्लुक खत्म होने की सूरत इख्तियार कर लेगा। आपको ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहना होगा। मरीख की सातवें घर में मौजूदगी का दूसरा मसला ये है कि इसके तहत ताल्लुकात में इख्तियारात के हुसूल की कशमकश शुरू हो जाती है, जो कि रोमांस के लिए जहर एक कातिल की हैसियत रखता है। अगर आप इस कैफियत से दामन बचा सकें तो ताल्लुक के बाकी रहने के इम्कानात खातिरख्वाह हद तक रोशन हो जाएंगे। 2022 में कौस अफराद ऐसे लोगों की तरफ माइल होंगे जिनके साथ अच्छा टाइम पास किया जा सके, जो जिंदगी से लुत्फ उठाना चाहते हों, जिनकी सोबत में आपको हंसने खेलने का मौका मिले। खिलाड़ियों के साथ आपकी अच्छी निभेगी और खेल या तफरीहात के दौरान मोहब्बत से भी आपका टकराव हो सकता है। पार्टियां और दावतें भी मोहब्बत से टकराव में अहम किरदार अदा कर सकती हैं, क्योंकि अतारत आपका मोहब्बत का स्यारा होने के साथ साथ आपके 10वें यानी कैरियर के घर का हुक्मरान भी है। इसलिए आप ऐसे अफराद की तरफ माइल होंगे जो प्रोफेशनल कामयाबी हासिल कर चुके हों और अपनी कोई हैसियत बना चुके हैं। इसके अलावा रोमांस का मौका आपको कैरियर के टारगेट्स के ताक़ुब के दौरान भी मिल सकता है। 2022 में घरेलू उमूर आपकी जिंदगी में खुसूसी अहमियत रखेंगे। इससे भी आम बात यह है कि आपको जज्बाती जख्मों के अंदर मालो दौलत के मौके मिलेंगे। आप अपने माजी की गलतियों और तलखियों के नताइज का सामना करेंगे। बहुत से पुराने एहसासात जाग उठेंगे। किसी की निगाह गलत अंदाज, किसी के बदन से उठती महक, किसी के बात करने का अंदाज, किसी का तवज्जो न देना, किसी की बेतवज्जो ही में किया गया कोई इशारा आपको उठाकर माजी के सहराओं में ले जा सकता है। जो कुछ भी होगा एक वजह, एक मकसद के तहत होगा और वो मकसद ये है कि आप अपने माजी से भागने के बजाय उस पर निगाह दौड़ाएं। जिन जख्मों को आपने दबा रखा है उन्हें थोड़ी देर के लिए हरा होने दें, ताकि उनके अंदर से माल और दौलत की कोई सूरत पैदा हो सके। बचपन में जो बात आपको बहुत तल्ख लगी थी, आज उसके मुतल्लिक सोचकर शायद आपके लबों पर मुस्कुराहट आ जाए। जब आप अपनी यादों को तलखियों से पाक करेंगे तो आपकी रूहानी जिंदगी भी नई ऊंचाइयों की तरफ गामजन हो जाएगी। जज्बात तब्दील नहीं होते, लेकिन उनको देखने के हवाले से हमारा नुक्ता नजर तब्दील हो जाता है। अहमियत सिर्फ इस बात की है कि आप आगे बढ़ते रहिए। प्लूटो आपके 12वें यानी रूहानी उमूर के घर का हुक्मरान स्यारा है। इसके असरात के तहत आप दौलत के रूहानी पहलुओं को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझने लगेंगे और इसके कवानीन का इतलाक मादी दुनिया में करने लगेंगे। गुर्बत का हकीकी इलाज आपको यही मिलेगा। गुर्बत का एक मफहूम ये भी है कि अल्लाह के खजानों से आपका ताल्लुक मुनक़ता हो जाए। अल्लाह के खजाने हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे कारोबार चल रहे हों या नहीं। जब वो अता करता है तो ये सारे अमामल बेमानी होकर रह जाते हैं। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं और अपना रिश्ता खुदा से जोड़ लेते हैं, उन्हें फिर जिंदगी में किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होती। मोहतरम सेजिटेरियस खवातीनो हजरात, आपका छठा घर यानी सेहत का खाना गुज़श्ता चंद सालों से भरपूर कुव्वत में है और 2022 में भी यही कैफियत रहेगी। यूरेनस यहाँ मुकीम है। इससे मालूम होता है कि आपकी सेहत के मामलात में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। आप खूब से खूब तर की तलाश में हैं और जब भी आपको लगता है कि मन की मुराद मिल गई है, कोई नई और बेहतर चीज आपके सामने आ जाती है। इस रुझान के बहुत से फायदे हैं। मुख्तलिफ तरह के तजर्बात करने, मुख्तलिफ डॉक्टर्स और हकीमों को आजमाने से आपके इल्म में इजाफा हो रहा है। आप जानते हैं कि आप सबसे अलग हैं। जो चीजें दूसरों को फायदा देती हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी मुफीद हों। 2022 में आप अपने जिस्मानी निजाम, अपनी कमजोरियों और कुव्वतों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। आपकी सेहत 2022 में अच्छी रहेगी और 11 मई के बाद इसमें मजीद बेहतरी
بہتری آئے گی۔ زورا آپ کی صحت کا سیارہ ہے، جس کی وجہ سے چند مختصر مدتی رجحانات نمودار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رجحانات زیادہ دیر پا نہ ہوں گے اور آپ کی صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ناظرین، پرجدی یعنی کیپریکارن کے لیے 2022 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سیاروں کی چال، اور جب سیارے مختلف بروج سے ہوتے ہوئے آپ کے برج میں داخل ہوں گے تو کیا اثرات مرتب کریں گے؟ سفر کے معاملات ہوں یا کیریئر، مال و دولت ہو یا عشق و محبت، ازدواجی تعلقات، سوشل ایکٹیویٹیز، اولاد، کاروبار اور اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں شامل لوگوں اور معاملات کے متعلق جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز جدی خواتین و حضرات، پلوٹو گزشتہ 2 دہائیوں سے آپ کے اپنے برج میں موجود ہے اور 2024 میں یہاں سے رخصت ہوگا۔ اس طویل قیام کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں۔ نفسیاتی سطح پر آپ کو موت کے وجود کا شدت سے احساس آپ کی شخصیت میں ایک نیا روپ لا رہا ہے، ایک ایسا روپ جسے آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 2020 کی ابتدا میں آپ کے ذاچے کا حکمران سیارہ زول آپ کے دولت کے خانے میں داخل ہو گیا تھا، جو 2022 بھی یہیں گزارے گا۔ پیسے کے حصول کے معاملات میں یہ ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ اس شعبے میں پوری توجہ دیں گے۔ تاہم 2022 میں آپ کو پیسہ کمانے کے لیے بھرپور محنت اور تندہی سے کام کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے مالی معاملات کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کے ساتھ اگر آپ کا کوئی تنازع چل رہا ہے تو اسے بھی ختم کیجیے۔ آپ کا تیسرا یعنی میڈیا اور تعلیم کا گھر کئی سال سے خاصا پاور میں ہے۔ نیپچون اس خانے میں مقیم ہے۔ 2022 میں آپ کے لیے گھر کی اہمیت اور بھی ابھر کر سامنے آئے گی، کیونکہ مشتری کم و بیش آدھا سال یہاں گزارے گا۔ 10ویں تک کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اچھی خبر ہے، وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے۔ سیلز، مارکیٹنگ، ایجوکیشن اور رائٹنگ کے شعبوں سے منسلک افراد کے لیے 2022 بہت بہترین سال ہوگا۔ آپ کی دانشورانہ صلاحیتیں اپنے شباب پر ہوں گی۔ مشتری سال کا باقی نصف حصہ آپ کے چوتھے یعنی گھریلو امور کے خانے میں گزارے گا۔ اس سے گھر کی تبدیلی یا گھر کی خرید و فروخت میں فائدے کا اشارہ ملتا ہے۔ بچہ پیدا کرنے کی عمر کو پہنچی خواتین میں معمول سے زیادہ زرخیزی دیکھنے کو ملے گی۔ یورینس گزشتہ چند سال سے آپ کے 5ویں یعنی تفریح و تخلیقی سرگرمیوں کے گھر میں مقیم ہے اور مزید چند سال یہاں ہی ٹھہرے گا۔ اسی کے اثرات کے تحت آپ کے لیے اپنی زندگی میں شامل بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ ان میں بغاوت و سرکشی اور معمول سے زیادہ آزادی کے رجحانات نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ کیئر آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تاہم اس کے نتیجے میں آپ کی تخلیقی قوت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پیسہ کمانے کا عمل بھی خوشکن ثابت ہو رہا ہے۔ جدی خواتین و حضرات، آپ کی صحت 2022 میں اچھی نظر آتی ہے، لیکن 11 مئی کے بعد آپ کو اپنی صحت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ 20 اگست کے بعد مریخ آپ کے چھٹے گھر میں معمول سے زیادہ عرصہ گزارے گا، جس کے اثرات کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ایموشنل ہیلتھ پر خصوصی توجہ دیں اور جسمانی ورزش بھی آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگی۔ آپ کے مالی معاملات کی بات کی جائے تو آپ اپنے مالی معاملات پر خصوصی توجہ دیں گے۔ زحل آپ کا حکمران سیارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طاقتور اور آپ کا دوست سیارہ ہے، جو آپ کے دوسرے یعنی دولت کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ اس سے آپ کی مالی خوشحالی میں اضافے کا اشارہ ملتا ہے۔ آپ اپنی ذات پر پیسہ خرچ کریں گے، یعنی آپ کی خوشحالی کا اظہار آپ کی وضاحت سے ہوگا۔ لوگوں پر آپ میں اس تبدیلی کا واضح اثر پڑے گا اور آپ کے لیے کئی دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کی ظاہری وضاحت اور طور طریقے آپ کی آمدن کے اضافے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ شاید اسی لیے آپ اپنی شخصیت کو سنوارنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آپ کے نزدیک سب سے بہترین انویسٹمنٹ وہ ہوگی جو آپ اپنی ذات پر کریں گے۔ تاہم آپ کے مالی امور میں 2022 میں کسی قدر پیچیدگیاں بھی نظر آتی ہیں۔ جو لوگ آپ کے مالی امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے اختلافات چل رہے ہیں، کوئی بات جو تنازع پیدا کر رہی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس مسئلے کو جلد از جلد سلجھانے کی کوئی تدبیر کریں، اس میں تمام فریقین کا فائدہ ہے۔ آپ سب میں اتفاق رائے ہونا بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں گے تو سمجھوتے کی کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ بہرحال اگر ان مسائل کو حل کرنا چاہیں تو یہ حل ہو جائیں گے اور یہ اتنے بھی گمبھیر مسائل نہیں جو کہ حل نہ ہو سکیں۔ آپ کا مالی امور کا سیارہ یورینس گزشتہ چند سالوں سے آپ کے 5ویں گھر میں مقیم ہے۔ اس سے خوشحالی ظاہر ہوتی ہے، مگر محض مادی دنیا کی خوشحالی نہیں۔ یہاں سے ظاہر ہونے والی خوشحالی روپے پیسے سے کچھ بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس کی بدولت
आप को ऐसे कामों से पैसा कमाने का मौका मिलता है जिन्हें करते हुए आपको खुशी भी होती है। यूं समझिए कि आप पैसा भी कमाते हैं और एंजॉय भी करते हैं। मुमकिन है छुट्टियां मनाते हुए आपको कोई कारोबारी सौदा करने का मौका मिल जाए या किसी पार्टी में जाएं और आपके लिए कोई कारोबारी दरवाजा खुल जाए। किस्मत आजमाई के खेलों में कामयाबी मिलने का कभी इम्कान है, लेकिन किसी ऐसे काम पर मुकम्मल तकिया करना खतरे से खाली न होगा। सोची समझी इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदेमंद होती है। आप खुशकुन रास्तों से पैसा कमाएंगे और इसे खुशकुन चीजों पर खर्च करेंगे, यानी वो चीजें जो आपके लिए मुसरत का सामान मुहैया करें। आपकी तख्लीकी कुव्वत भी उन दिनों आपके लिए फायदा मंद होगी। आप अपनी जिंदगी में शामिल बच्चों पर पैसा खर्च करेंगे। ऐसी समतें आपके लिए बहुत मुफीद होंगी जो नौजवानों की ख्वाहिशात और जरूरियात पूरी करने के लिए काम करती हैं, खुसूसन वो जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक से होगा, यानी वीडियो गेम्स, डिजिटल म्यूजिक, वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह। जैसा कि पहले जिक्र हुआ है, करियर के हवाले से 2022 में आपके लिए कोई खास हलचल नहीं होगी। यूं समझिए 2022 में आप अपने करियर की बुनियाद रखेंगे। सलाहियत या एहलियत के हवाले से आपको कोई मसला दरपेश नहीं होगा, बस इस तरफ आपकी दिलचस्पी थोड़ी कम होगी। जोरा आपका करियर का सियारा है जो इंतहाई तेज रफ्तार पर सफर करता है, जिसकी वजह से करियर के हवाले से कुछ कम मुद्दी रुझानात नमूदार होते रहते हैं जिनका असर ज्यादा अरसा नहीं रहता। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीनो हज़रात, घरेलू उमूर के हवाले से आपका 2022 भरपूर साल होगा। 11 मई से 23 अक्टूबर और फिर 21 दिसंबर से लेकर 2023 तक मुश्तरी आपके चौथे घर में मौजूद होगा। इससे जाहिर होता है कि आपको घर बदलने या नया घर खरीदने का कोई सुनहरी मौका मिल सकता है। खरीदारी का मौका ना भी मिला तो एक से ज्यादा रिहाइशगाहों तक आपकी रसाई मुमकिन होगी। मुश्तरी के असर से 2022 में आपके खानदानी हल्के में वुसअत आएगी। बच्चा पैदा करने की उम्र की खवातीन 2022 और 2023 में भी बच्चा पैदा करने की बेहतरीन पोजीशन में होंगी। मुश्तरी आपके रूहानी उमूर का सियारा भी है। इसकी वजह से मजमूई तौर पर आपका पूरा घर और खुसूसी तौर पर कोई बुजुर्ग गहरे रूहानी असरात की जद में है। उनके ख्वाबों की दुनिया मुतहरक हो गई है और उनकी छठी हिस्स बहुत मुतहरक है। उन्हें तरह तरह के माफूकुल फितरत तजर्बात का सामना हो रहा है। अगर आपको अपना घर रूहानी सरगर्मियों का मरकज बनता नजर आए तो उसमें हैरान होने की जरूरत नहीं। आपके वालिदैन या बुजुर्गों में से किसी एक को सफर करने के कई मौके मिलेंगे। बड़ों के माली उमूर में भी कई तब्दीलियां रुनमा होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह खुशहाली में इजाफा होगा और ये रुझान 2023 में भी जारी रहेगा। उनके घरेलू उमूर मुस्तहकम रहेंगे। उनके घर तब्दील करने का कोई खास इम्कान मौजूद नहीं। आपके बहन भाइयों के लिए भी 2022 मजबूत तौर पर अच्छा गुजरेगा। आपकी जिंदगी में शामिल बच्चों को बारहा रिहाइशगाहें तब्दील करने की जरूरत पड़ सकती है। उनकी जिंदगी इस वक्त उतार चढ़ाव का शिकार है, ताहम बाकायदा तौर पर घर बदलने की नौबत नहीं आएगी। आपका सातवां यानी मोहब्बत का घर 2022 में खाली रहेगा, लिहाजा रूमानवी उमूर में भी इस्तेहकाम रहेगा। जो जद्दी अफराद शादीशुदा हैं उनका ताल्लुक बेहतरीन रहेगा और जो कमारे हैं उनमें से अक्सर को शादी करने की ख्वाहिश नहीं महसूस होगी। अगर आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ मसाइल पैदा हुए तो उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि आपकी अपनी अदम तवज्जो होगी। इसलिए बेहतर होगा रोमानवी मामलात को यकसर नजरअंदाज न करें, बल्कि उनके लिए कुछ न कुछ वक्त जरूर निकालते रहिए। 2022 में लगने वाले 2 चांद ग्रहण जो 16 मई और 8 नवंबर को लगेंगे, उनकी वजह से आपके मामलाते मोहब्बत में उतार चढ़ाव पैदा होंगे, जिनकी वजह से आपको अपनी सिमत दुरुस्त करने और गलतियों का अजाला करने की जरूरत महसूस होगी। अगर आप तन्हा हैं तो मोहब्बत आपको ढूंढ लेगी, कोई आपका ताक़ुब कर रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ताल्लुक में ज्यादा कुर्बत और गहराई पैदा होगी। आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। चांद आपका मोहब्बत का सियारा है और दूसरे तमाम सियारों की निस्बत तेजी से फासला तय करता है। मजमूई तौर पर बात की जाए तो जिन दिनों में चांद बढ़ रहा होगा, आपके मोहब्बत के मामले ज्यादा बेहतर अंदाज में चलेंगे। आप में ज्यादा तवानाई होगी, ज्यादा वलवला होगा और आप बेहतर अदब आदाब का भी मुजाहिरा करेंगे। नए और मुकम्मल चांद में आपकी समाजी मसरूफियात में इजाफा हो जाएगा। आपके वालिदैन या बुजुर्गों में से किसी एक के 11 मई के बाद मामलाते मोहब्बत अच्छे अंदाज में चलेंगे। अगर वो शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो उनकी शादी होने के कभी इम्कान मौजूद है। कोई संजीदा ताल्लुक भी शुरू हो सकता है। भाई बहनों का साल माली एतबार से तो अच्छा गुजरेगा, लेकिन रूमानवी महाज पर खामोशी नजर आती है। आपकी जिंदगी में शामिल बच्चों के लिए शादी 2022 के बजाय 2024 में ज्यादा बेहतर है। उनकी जिंदगी में इस वक्त खासा अदम इस्तेहकाम मौजूद है, इसलिए वो मोहब्बत में संजीदगी इख्तियार करने के मूड में नहीं है। बच्चों के बच्चे अलबत्ता रूमानवी और समाजी एतबार से एक भरपूर और खुशबाश साल गुजारेंगे। अगर वो छोटे हैं तो नए दोस्त बनाएंगे और उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा।
अगर वो बड़े हैं तो शादी भी कर सकते हैं या किसी संजीदा ताल्लुक में गिरफ्तार भी हो सकते हैं। नेपच्यून गुज़श्ता कई सालों से आपके तीसरे घर में मौजूद है। रूहानी सतह पर बात की जाए तो ये वक्त आपकी ज़हनी सतह में इजाफा कर रहा है, आपकी अक्ल व दानिश को बढ़ा रहा है और ज़हनी सलाहियतों को सैकल कर रहा है। ताहम इस अमल में कहीं ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। मुश्तरी आपका रूहानी उमूर का स्यारा है जो कमोबेश 6 माह तक आपके तीसरे घर में गुजारेगा। जो पहली चीज आप नोट करेंगे वो ये होगी कि लिखने पढ़ने के हवाले से आपका ज़ौक़ पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। आप रूहानी मौज़ूआत का मुतालिया करना ज्यादा पसंद करेंगे। रवायती तहरीरें आपको फीकी और बेजान महसूस होंगी। आप ज्यादा गहरे पानियों में गोताज़न होने के मूड में होंगे। आपका अबलाग और इज़हार ख्याल का अंदाज भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बहुत से अच्छे राइटर बुर्जदी से ताल्लुक रखते हैं। मशहूर राइटर एमरसन का कौल है कि तहरीर का हर लफ्ज अल्लाह की रहमत से ज़हूर में आता है। अब आपको ये कौल बेहतर अंदाज में समझ आने लगेगा। आप में से अक्सर ख़वातीन हज़रात राइटिंग और शायरी के मैदान में उतरने के ख्वाह होंगे। जदी अफराद आमतौर पर बड़े सीधे और खरे अंदाज में बात करते हैं, मगर अब आप अपनी तहरीर तकरीर में बारीकियों और नज़ाकतों के साथ साथ लतीफ जुमलों का इस्तेमाल भी करेंगे। आप अनकही बातों को भी समझ जाने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या बताया गया है और क्या छुपाया जा रहा है। आपके मुताले में ज्यादा गहराई और गिरफ्त पैदा हो जाएगी। मोहतरम जद्दी ख़वातीनो हज़रात, यूरेनियस तब्दीलियों का स्यारा आपके 5वें यानी तख्लीकी घर में मौजूद है। इसी वजह से आप में से बास को बच्चों की सरकशी परेशान भी करती नजर आती है, लेकिन आप अमली तौर पर समझ जाएंगे कि इन मसाइल से कैसे निपटा जा सकता है। जद्दी अफराद को हाकमियत भी पसंद है और हाकमियत का इस्तेमाल करना भी अच्छा लगता है, लेकिन अपने बच्चों के मामले में आपका ये रवैया अगर हद से बढ़ा तो ये फायदे के बजाय आपके लिए नुकसान का बायस होगा। बाज़ औक़ात जबरदस्ती की वजह से बच्चों की सरकशी और हठधर्मी में इजाफा हो जाता है। यूरेनस की फितरत में है कि वो हाकमियत को झटक दे। हाकमों को चैलेंज करना उसे लुत्फ देता है, मगर उसे सच्चाई भी पसंद है। इसलिए बच्चों की हुदूद मुकर्रर करने के लिए तहक्कुम के बजाय तदब्बुर से काम लीजिए। यूं वो आपकी बात समझकर मान भी जाएंगे। सेहत की बात की जाए तो उमूमी तौर पर आपकी सेहत की सूरत हाल बेहतर रहेगी। प्लूटो और मुश्तरी की वजह से सख्त दिन आएंगे, लेकिन उनकी मुखालफत आर्जी होगी, जिसकी वजह से जल्द सेहत की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। 20 अगस्त को मरीख आपके छठे घर में दाखिल होगा और साल के बाकी माह यहीं गुजारेगा। उस वक्त में आपको अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। अपने आप को फिक्र तशवीश से बचाइए, क्योंकि दिल की तमाम बीमारियां अक्सर इन्हीं मसाइल की वजह से पैदा होती हैं। खुदा की इबादत और चंद वजीफे आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। आयतुल कुर्सी का सुबह शाम पढ़ना आपको बेइंतहा फायदा देगा। आपको चाहिए कि अपने दांतों की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। अपने मूड में हमेशा मुस्बत और तामीरी पहलू शामिल रखिए। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 2022 कैसा होगा? हालात व वाक़यात की तब्दीली, जज्बाती जिंदगी में उतार चढ़ाव, कैरियर, शादी, औलाद, कारोबार, रोमांस और जिंदगी के दीगर पहलुओं के मुतल्लिक जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ दल्ब ख़वातीनो हज़रात, आपके लिए 2022 उमूमी तौर पर खुशकुन साबित होगा। आपकी दौलत का घर कुव्वत में है, अलबत्ता सेहत व तवानाई के शोबे में आपको तवज्जो देने की जरूरत पेश आएगी, क्योंकि एक से ज्यादा ताकतवर और तवील मुद्दत तक क्याम करने वाले सियारे आपकी सेहत पर कुछ बुरे असरात डाल रहे हैं। और जब इनके साथ मुख्तसर मुद्दती सियारे शामिल हो जाएंगे तो सूरत हाल थोड़ी तशवीशनाक हो सकती है। तवानाई में कमी के बावजूद खुशहाली में इजाफे के कभी इम्कान मौजूद होंगे। मुश्तरी साल का तकरीबन निस्फ हिस्सा आपके दौलत के घर में गुजारेगा और 11 मई के बाद आपके तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा और तमाम साल वही सकूनत इख्तियार किए रखेगा। स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स तालीमी मैदान में बहुत सी कामयाबियां समेटेंगे। राइटर, सहाफी, टीचर्स, प्रोफेसर और इसके अलावा सेल्स और मार्केटिंग के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए भी ये एक अच्छी खबर है। उनके माली मामलात 2022 में बहुत शानदार अंदाज में चलेंगे। ज़ोल दिसंबर 2020 से आपके पहले घर में मौजूद है। इसके यहाँ क़याम से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के असरात मुरतब होते हैं। पॉजिटिव ये कि आप अपनी लाइफ को ज्यादा सीरियस ले
रहे ہیں اور بھرپور ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ بہت زیادہ ذمہ دار ہو گئے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ زول کے آپ کے پہلے گھر میں ہونے سے منفی پہلو آپ کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے، آپ نیگیٹو سوچ پالنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو اپنی عمر اور وجود کی حدود و قیود کا کچھ شدت سے احساس ہونے لگتا ہے، آپ میں زیادہ سنجیدگی آ جاتی ہے جس کا اثر آپ کی گھریلو اور رومانٹک لائف پر بھی پڑتا ہے۔ پلوٹو تقریباً 20 سال سے آپ کے 12ویں گھر میں قیام پذیر ہے، اس سے آپ کی روحانی زندگی تبدیل ہو گئی ہے اور یہ عمل 2022 میں بھی جاری رہے گا۔ بہرحال اس حالت کا پیک پوائنٹ گزر چکا ہے، 2024 تک پلوٹو یہاں سے چلا جائے گا، اس وقت آپ کی روحانی زندگی مکمل طور پر بہتر ہو جائے گی۔ یورینس گزشتہ چند سالوں سے آپ کے چوتھے گھر میں مقیم ہے اور مزید چند سال یہیں گزارے گا، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کے گھریلو معاملات عدم استحکام کا شکار ہیں اور آپ ان کی طرف خصوصی توجہ دے رہے ہیں، آپ کی ایموشنل لائف میں کافی اکھاڑ پچھاڑ چل رہا ہے۔ معزز دلت خواتین و حضرات، مالی اعتبار سے 2022 آپ کے لیے خوشحالی کا سال ہوگا۔ آپ کے دولت کے گھر میں مشتری موجود ہے، مشتری وسعت اور فراوانی نعمت کا سیارہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کی دولت کا گھر بھرپور قوت میں ہے۔ مشتری 2022 کے ایک بڑے حصے میں نیپچون کے ساتھ مل کر سفر کرے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نیپچون آپ کا مالی امور کا سیارہ ہے۔ 2022 کے اختتام پر آپ کی مالی خوشحالی انشاءاللہ سال کی شروعات کی نسبت کافی زیادہ ہو جائے گی۔ مشتری آپ کے 11ویں گھر پر حکمرانی کرتا ہے، اس سے کئی اشارے ملتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آن لائن دنیا، سوشل ریلیشنز اور ٹیکنالوجی کے شعبے آپ کے لیے بہت منافع بخش ثابت ہوں گے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہوں، اگر آپ آن لائن دنیا اور ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتے ہیں تو یہ مہارت آپ کے کام میں اہم کردار ادا کرے گی۔ 2022 میں آپ ٹیکنالوجی پر معمول سے زیادہ پیسہ خرچ کریں گے اور اس سے کمائیں گے بھی، آپ کے دوست بھی خوشحال ہوں گے اور آپ کے لیے مواقع فراہم کریں گے۔ مالی اعتبار سے آپ جو کچھ بھی چاہتے رہے ہیں اس سب کے ملنے کے کبھی امکان موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سب ملنے کے بعد آپ مزید تمنائیں کرنے لگیں گے۔ ٹیکنالوجی کے علاوہ ایسی انڈسٹریز جن میں پانی اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کے لیے منافع بخش رہیں گی۔ پانی کی بوتلیں، واٹر فلٹریشن پلانٹس، شپنگ، جہاز سازی، ماہی گیری، سی فوڈز بزنس، تیل، قدرتی گیس اور بعض میڈیسنز اس حوالے سے بہترین رہیں گی۔ ملازمت اور کاروبار کے حوالے سے یہ سب شعبے آپ کے لیے انتہائی مناسب رہیں گے۔ 11 مئی کو مشتری آپ کے 11ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، اس کے تحت آپ کو نئی سواری اور کمیونیکیشن کے آلات ملنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال 2023 میں بھی جاری رہے گی۔ برج دلف سے منسوب افراد، آپ کا کیریئر کا سیارہ پلوٹو گزشتہ 2 دہائیوں سے آپ کے 12ویں یعنی روحانی امور کے گھر میں موجود ہے۔ یہ 2022 بھی یہیں گزارے گا، لیکن 2023 میں یہ آپ کے پہلے گھر میں داخل ہونے اور 12ویں گھر سے نکلنے کا سلسلہ شروع کر دے گا، جس کے اثر کے تحت آپ کے کیریئر میں کئی تبدیلیاں رونما ہوں گی جن کی تیاری آپ کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کے 10ویں گھر میں لگنے والے 2 گرہن بھی آپ کو ان تبدیلیوں کی طرف مائل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے 16 مئی کو چاند گرہن لگے گا اور اس کے بعد 25 اکتوبر کو سورج گرہن، ان کے تحت پازیٹیو چینجز پیدا ہوں گی۔ گزشتہ دہائیوں سے آپ کی کامیابی پوشیدہ تھی، پردے کے پیچھے کہیں چھپی ہوئی تھی، آنے والے 2 سالوں میں یہ ظاہر ہونے لگے گی اور دنیا والے بھی آپ کی کامیابی کو تسلیم کریں گے۔ اس عمل کے دوران آپ ویلفیئر کے کاموں میں حصہ لینا جاری رکھیں گے۔ آپ کسی ایسے کیریئر کی ضرورت محسوس کرتے تھے جو آپ کے لیے اور انسانیت کے لیے کوئی معنی رکھتا ہو، یہ رجحان 2022 میں بھی جاری رہے گا۔ جو افراد برج دلف کے ابتدائی دنوں یعنی 20، 21 اور 22 جنوری کو پیدا ہوئے ہیں، انہیں پہلے گھر میں پلوٹو کی موجودگی کے اثرات ابھی سے محسوس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کی کامیابی آپ کی شخصیت سے ظاہر ہونے لگی ہے، کیریئر کے مواقع آپ کی طرف رخ کیے چلے آ رہے ہیں، آپ کو ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محترم دلف خواتین و حضرات، مارچ 2019 سے یورینس آپ کے چوتھے یعنی گھریلو امور کے خانے میں داخل ہو گیا اور تب سے اس خانے کی پاور اور امپورٹنس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ کیفیت مزید چند سال یوں ہی برقرار رہے گی اور 2022 میں اس کیفیت میں زیادہ شدت دیکھنے کو ملے گی۔ مثبت خبر یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پر اس طرف توجہ دے رہے ہیں، اسی وجہ سے مسائل کو زیادہ بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ عموماً جب آپ کے مسائل سر اٹھانا شروع کرتے ہیں تو آپ ان کی گردن دبوچ لیتے ہیں۔ تشویش کا پہلو یہ ہے کہ ان دنوں آپ کے گھر کے حالات غیر معمولی طور پر عدم استحکام کا شکار ہیں، بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہے ہیں، آپ کے خاندان کے ارکان میں دوریاں بڑھنے کے امکان موجود ہیں۔ ایسے میں معاملات کو سنبھالے رکھنے کے لیے آپ کو پوری توجہ اور محنت سے کام کرنا ہوگا۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے موڈ میں آنے والے اتار چڑھاؤ خاصی شدید نوعیت کے ہوں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ بہتری چاہتے ہیں تو عبادات
और मराकबे की तरफ ध्यान करना आपके लिए बहुत फायदे मंद होगा। मूड में उतार चढ़ाव की कैफियत को काबू करने के लिए मुमकिन है आपको किसी डॉक्टर की खिदमत भी हासिल करना पड़े। आपके मूड में पल पल बदलते रंगों का नुकसान ये है कि आप कभी यकीन से नहीं कह सकते कि अपने अहले खाना के हवाले से आप किस जगह पर खड़े हैं और आपका रवैया और तरीका क्या होना चाहिए। कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। खुदा जाने कब कोई धमाका हो जाए। आपको हर लम्हा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ती है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें मंतक को अक्ल पर परखने की कोशिश की जाए तो कोई सिरा हाथ नहीं आता, मगर इनसे पहलू तही और नजर चुराना भी नामुमकिन है। यूरेनस की आपके चौथे घर में मौजूदगी से जाहिर होता है कि जैसे आप अपना ख्वाबों का घर तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आपको ये लगता है कि एक काम मुकम्मल हो गया है तो आप किसी और काम की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपने घर और घरेलू माहौल को वो शक्ल दे रहे हैं जिसकी आपको हमेशा से ख्वाहिश थी। इसके अलावा यूरेनस की वजह से आपको घर बदलने या तामीर मुरम्मत की जरूरत भी पेश आ सकती है। आपके वालिदैन या बुजुर्गों में से किसी एक के साथ आजकल आपकी वाबस्तगी बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन वो बुजुर्ग किसी कदर बेचैनी और तजब्जुब का शिकार हैं। उन्हें फ्रीडम की शदीद तलब महसूस हो रही है, यानी यूं कहा जाए कि वो अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो गलत ना होगा। आपके भाई बहनों की खुशहाली में इजाफा मुतवक्के है। आपकी जिंदगी में शामिल बच्चों के घरेलू उमूर मुस्तहकम और हमवार अंदाज में चलते नजर आते हैं, लिहाजा फिक्र की कोई बात नहीं। एक्वेरियस खवातीनों हजरात, आपका मोहब्बत का घर कई सालों से कुवत में नहीं आया और 2022 में भी यही कैफियत बरकरार रहेगी। कुछ कम दौरानिये के सियारे यहाँ से गुजरते रहेंगे, लेकिन उनके असरात टेम्परेरी होते हैं। गैर शादीशुदा दल्ब अफराद शादी की तरफ माइल होते नजर नहीं आते और जो शादीशुदा एक्वेरियस हैं उनके अज़दवाजी तल्लुकात बेहतर रहेंगे। इस सब में मुस्बत पहलू ये है कि आप अपनी रोमांटिक लाइफ से मुतमिन रहेंगे। गोया 2022 आपकी जात के गिर्द घूम रहा है। आप अपनी जाती ख्वाहिशात और तरजीहात को अव्वलियत दे सकते हैं। दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को खुश रख सकते हैं। अपनी आजादी पर कोई समझौता न किए बिना आगे बढ़ सकते हैं। 2022 आपको खुद कफील करेगा। मुमकिन है 2 सूरज ग्रहण आपकी रोमांटिक लाइफ में कोई हलचल पैदा करें, जिनकी वजह से आपको रोमांस के मामलात में इस्लाहात करने की जरूरत पेश आ जाए। जो एक्वेरियस दूसरी और तीसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए काफी रोशन इम्कानात मौजूद हैं। आपका कोई दोस्त आपका महबूब बन सकता है, या ऐसे अफराद जो आपकी माली देखभाल करते हैं उनमें से कोई आपको रूमानवी जाविये से दिल पसंद हो सकता है। आपको अड़ोस पड़ोस और एजुकेशनल एक्टिविटीज के दौरान नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। आपके वालिदैन या बुजुर्गों के अज़दवाजी तल्लुकात 2022 में आजमाइश से गुजरेंगे। अगर उनमें से कोई शादी का सोच रहा है तो ऐसा करना उनके लिए बेहतर साबित न होगा। आपकी लाइफ में शामिल बच्चों का 2022 रोमानवी और समाजी एतबार से खासा सरगर्म रहेगा। वो रोमांस और सोशल लाइफ पर खुसूसी तवज्जो देंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। वो अच्छी और ऊंची पोजीशन के लोगों की तरफ राग़िब होंगे और ऐसे ही लोगों से उनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं। इन सब बातों का इन्हिसार उनकी एज पर है। अगर वो बड़े हैं तो रोमानवी ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं और अगर छोटे हैं तो नए दोस्त बनाएंगे। 2022 में रूहानी कैफियत, जिन्हें विजदान भी कहा जाता है, आपके नजदीक काफी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे और 2022 में ये रुझान काफी शदीद हो जाएगा। माली मामलात में आपकी छठी हिस्स बहुत बेहतर अंदाज में काम करेगी। आपने गुजरे हुए सालों में जो माली स्टेप्स लिए थे उनकी बदौलत पैसा रवायती और गैर रवायती दोनों तरीकों से आपकी जानब बढ़ रहा है। मुमकिन है आपको ऐसी जगहों से काफी दौलत हासिल हो जाए जिनके मुतल्लिक आपको वहमो गुमा भी न हो। 2022 में आपको अपने इल्म में इजाफा करने का मौका मिलेगा। आपको इस बात का इदराक मुकम्मल तौर पर हो जाएगा कि कुदरत आपका बहुत ख्याल रखती है। हालात जैसे भी हों, माली हवाले से आपको ख्वाबों से रहनुमाई हासिल हो सकती है। जहन में उभरने वाले अचानक ख्यालात दुरुस्त साबित हो सकते हैं। आपके कोई पीरो मुर्शिद हैं तो वो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। आपका रूहानी उमूर का सियारा ज़ुहल 2020 से आपके अपने बुर्ज में पराजमान है, जिसकी वजह से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियतें निखर कर सामने आ रही हैं। आप दूसरों से अच्छे तरीके से काम लेना भी सीख रहे हैं। आप अपने वजूद को संवारने पर बेहतर अंदाज में तवज्जो दे रहे हैं। अगर आप अपने वजन में कमी करना चाहते हैं तो 2022 बेहतरीन साल होगा। आप मिजाजन कुछ ज्यादा गर्मजोश इंसान नहीं। आपको शायद इल्म भी न हो कि लोग आपको एक सर्द महर इंसान समझते हैं। जिन लोगों को आपके मुतल्लिक ये महसूस होगा कि आपकी कुर्बत में आना
मुश्किल है तो वो 2022 में आपके करीब ही नहीं आएंगे। मुमकिन है आपके अपने भी आपसे दूर होने लगे। इसका हल ये है कि अपनाइयत और गर्मजोशी का तासुर पैदा कीजिए। हर रोज कोशिश कीजिए कि अपने अजीज जान लोगों के सामने इजहार कीजिए ताकि उनको अपनाइयत का एहसास हो और वो आपकी कुर्बत में रहें। सेहत के हवाले से आपका सेहत का घर पावर में ना होने की वजह से आप इस तरफ खातिर खा तवज्जो न दे पाएंगे। ये एहसास के सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सेहत के हवाले से कोई संगीन मसला पैदा कर सकता है। आपकी तवानाई की सूरत हाल भी कम है, इसलिए अपने आराम और सुकून का ख्याल रखते रहिए। थकावट के आसार हो तो आराम कीजिए। अगर तबीयत बोझल महसूस हो तो खुद पे किसी किस्म का प्रेशर मत डालिए। खुद पर इतना ही बोझ डालिए जितना कि आप उठा सकते हैं। अपने जिस्म की सदाओं पर ध्यान दीजिए। वर्जिश आपके आसाब को बेहतर बनाएगी और खुदा पर भरोसा आपके उलझे हुए तमाम मामलात को दुरुस्त कर देगा। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, फैज़ आलम टीवी पर एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, इस वीडियो में आपके साथ बुर्ज हूत यानी पाइसेस के मुतालिक 2022 से मुतल्लिका मालूमात शेयर की जाएंगी। 2022 में बुर्ज हूत से वाबस्ता अफराद की जिंदगियों में क्या होने जा रहा है, किन एहतियातों की जरूरत है और किन वाक़यात के वकूअ पजीर होने का इम्कान मौजूद है, एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ लगे बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए। मुअज़्ज़ज़ पाइसेस ख़वातीनो हज़रात, आपको मुबारक हो। आपके लिए 2022 बहुत ही खुशी और खुशहाली लेकर आ रहा है। सेहत के हवाले से भी आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि लंबे अरसे तक क़याम करने वाला कोई भी सियारा आपके जायचे में ऐसे असरात मुरतब नहीं कर रहा जो आपके खिलाफ हों। जब 11 मई और उसके बाद 29 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक मुश्तरी यानी जुपिटर आपके बुर्ज में होगा, उस अरसे में जो खवातीन शादीशुदा हैं उनमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। मुश्तरी आम तौर पर एक बुर्ज में 1 साल तक क़याम करता है, मगर आपके बुर्ज में मुश्तरी 5 से 6 माह तक क़याम करेगा। 40 साल से जायद उम्र के हूत खवातीनो हजरात, आपकी जिंदगी में भरपूर आराम और आसाइश आएगी, जिसकी वजह से आपके जिस्मानी वजन के बढ़ने का अंदेशा भी हो सकता है। लिहाजा आपको चाहिए इस जानब अपनी तवज्जो जरूर रखिए। मुश्तरी की 11 मई तक आपके बुर्ज में मौजूदगी आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स यानी म्यारे जिंदगी बुलंद कर देगा। 2022 में खुशहाली और पुरतइश जिंदगी से आपका सामना होगा। आप बहुत मसरूर और खुश रहेंगे। मुश्तरी की आपके दौलत के घर में 11 मई के बाद आमद इस बात का वाज़े इशारा है कि आपकी दौलत में इजाफा होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। इसकी वजह से आपके करियर पर बहुत बेहतरीन असरात मुरतब होंगे। प्लूटो की आपके 11वें घर में मौजूदगी से आपका हल्का अहबाब एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। आपके कुछ दोस्तों को मौत ने अपनी आगोश में ले लिया है और कई पुराने रिलेशंस खत्म हो गए हैं और कुछ दोस्त तो ऐसी सूरत हाल में हैं कि गोया मौत की दहलीज पर खड़े हों। 2022 में आप रूहानी उमूर में अमली तौर पर एक्टिव नजर आएंगे। सैटर्न यानी ज़ोहल की आपके 12वें घर में मौजूदगी 2022 में भी बरकरार रहेगी। आपकी रूहानी जिंदगी के फवायद आपको मादी दुनिया में भी मयसर आ सकते हैं। मुमकिन है बास पाइसेस खवातीनों हजरात को अपनी एजुकेशनल सरगर्मियों के लिए बनाए मंसूबों में तब्दीलियां करना पड़े, क्योंकि यूरेनस आपके 3रे घर में मुकीम है जो कि 2023 भी यहीं गुजारेगा। स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स इसके असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। मार्स यानी मरीख की आपके 4थे घर में मौजूदगी की वजह से मुमकिन है आपको घर में कोई तामीरो मुरम्मत या तहरीनो आराइश की जरूरत पेश आए। पैसे के एतबार से 2022 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। 2022 में आपको इजाफी आमदन हासिल होगी और दौलत कमाने के खुशनुमा मौके आपके असासों की मालियत में खातिर खा इजाफा कर देंगे। एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक जब मुश्तरी आपके बुर्ज में होता है तो दौलत और फरावानी नेमत का बायस बनता है, और फिर जब मुश्तरी पाइसेस से एरीज में दाखिल होता है तो इसकी कुव्वत में इजाफा हो जाता है। मुश्तरी
کے آپ کے برج میں قیام سے آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ اپ رہے گا، آپ کو ٹریولنگ کے مواقع بھی میسر آ سکتے ہیں، آپ اپنی ذات اور اپنے وجود پر توجہ دیں گے۔ آپ کے برج میں مشتری کی آمد سے گویا قدرت آپ پر مہربان ہوگی، اور جب قدرت مہربان ہوتی ہے تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز ہی فائدہ دیتی ہے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار، عزیز، دوست یا آپ کے باسز ہوں۔ آپ کا کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ جس کا تعلق گورنمنٹ کے اداروں سے ہو، اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کی زندگی کا رخ ہی کامیابی کی طرف ہوگا۔ پیشہ ورانہ مواقع کی تلاش میں آپ کو بھاگنا نہیں پڑے گا، بلکہ بنا کچھ زیادہ مشقت اٹھائے وہ آپ کی جانب چلتے چلے آئیں گے۔ آپ کا لباس اور طرز رہن سہن اتنا بدل جائے گا کہ آپ کے جانے والے ان انداز و اطوار سے کافی امپریس ہوں گے۔ 2022 میں آپ کو اپنے آپ پر محنت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ایک آئیڈیل شخصیت کے طور پر ظاہر کرنا چاہیے۔ جب مشتری 21 دسمبر کے بعد برج حمل میں داخل ہوگا تو آپ کی انکم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کو اپنے آفیسرز کی جانب سے انعام و اکرام ملنے کے بھی امکان ہیں۔ آپ کی ماہانہ تنخواہ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی پیشہ ورانہ ساکھ اچھی ہے تو یہ سب آپ کے لیے مالی فوائد کا باعث بنے گا۔ 20 اگست کے بعد آپ کا مالی امور کا سیارہ آپ کے چوتھے گھر میں داخل ہوگا۔ اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ کے مالی معاملات میں اہل خانہ اور خاندانی تعلقات کی اہمیت بڑھاوے میں ہوگی۔ اس کے تحت ہاؤسنگ سوسائٹیز، جن میں مکانات کی خرید و فروخت، خوردنی اشیاء کا بزنس اور گھریلو اشیاء ضروریہ کے متعلق کاروبار آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ مریخ کی جوزہ میں موجودگی ٹیلی کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹ کا شعبہ اور میڈیا کے شعبے میں آپ کے لیے فوائد کا باعث بنے گا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، رائٹنگ اور ٹریڈنگ کے شعبے بھی آپ کے لیے منافع بخش ثابت ہوں گے۔ 20 اگست سے 2022 کے اختتام تک مریخ آپ کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو گھر میں ریپیئرنگ اور ڈیکوریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ پر آپ دل کھول کر پیسہ خرچ کریں گے۔ اہل خانہ کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملے گی۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کام کرتے نظر آئیں گے۔ ممکن ہے آپ کوئی ایسا کام شروع کر دیں جو گھر بیٹھ کر ہی ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا گھر کی تعمیر و مرمت کا ارادہ بنے تو 20 اگست کے بعد یہ اقدام بہتر رہیں گے۔ آپ کے والدین یا بزرگوں میں سے کوئی خاتون بچہ پیدا کرنے کی عمر میں ہے تو اس کے ہاں نو مولود کی پیدائش ممکن ہے۔ آپ کے بہن بھائیوں کی بات کی جائے تو وہ بار بار اپنا گھر تبدیل کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ آپ کے بچوں کو حال ہی میں گھر تبدیل کرنے کا موقع ملا ہے۔ 2022 میں آپ کے بچوں کی گھریلو زندگی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر 2022 میں وہ گھر تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ان کے لیے 2022 میں گھر تبدیل کرنا مناسب نہ ہوگا۔ آپ کا 7واں یعنی محبت کا گھر 2022 میں خالی رہے گا، اس لیے آپ کے سماجی میل ملاپ کے حوالے سے کوئی گہما گہمی نظر نہیں آتی۔ آپ کی پہلی ترجیح آپ کی اپنی خوشی ہے۔ جب آپ خوش ہوں گے تو محبت بھی خود بخود آپ کے قریب چلی آئے گی۔ کنوارے ہود افراد کی شادی کا کوئی امکان موجود نہیں، لیکن جن کی شادی ہو چکی ہے وہ قدرے پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کو اگنور کرنا شروع کر دیں۔ اپنے لائف پارٹنر پر آپ کا توجہ نہ دینا آپ کے لیے گمبھیر مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ جو حضرات شادی کے خواہش مند ہیں، چاہے وہ پہلی ہو یا دوسری، ان کی رومانٹک لائف میں 2022 میں خاموشی نظر آتی ہے۔ آپ کی ملاقاتیں نئے اور عام دوستوں سے ہو رہی ہیں۔ آپ کے حلقہ احباب میں وسعت پیدا ہو رہی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں دی ہوئی ہیں تو ان کی شادی کے امکانات روشن ہیں۔ ان کی سوشل لائف میں تیزی آئے گی اور وہ نئے دوست بنائیں گے۔ رشتہ جوڑنے سے پہلے انسان کو اپنی ذات میں خود کفیل ہونا چاہیے تاکہ اپنی ویلیو بڑھانے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ رشتہ ہی انسان کو مکمل بناتا ہے۔ رشتوں کے بغیر انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ جب آپ دوسروں کے کام آتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کو مل جاتی ہے۔ بعض جگہ پر ایک رشتہ کام آتا ہے تو بعض جگہوں پر دوسرا رشتہ۔ آپ اپنے آپ کو مکمل کرنے اور اپنی ہی صحبت میں خوش رہنا سیکھ جائیے، یوں دوسرے بھی آپ کی صحبت میں خوش رہیں گے۔ معزز ہود خواتینوں حضرات، مشتری آپ کے کیریئر کا سیارہ ہے۔ آپ کو ایسے کیریئر کی ضرورت پیش آ رہی ہے جو مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ
آپ کی روحانی ضروریات بھی پوری کر سکے، یعنی روحانی نشوونما اور روحانی معاملات ہی آپ کا کیریئر ہیں۔ 2022 میں آپ اس رجحان کو عملی طور پر محسوس کریں گے۔ زحل آپ سے عملی طور پر متحرک ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ اپنی رومانوی زندگی کو ایک نظم و نسق کے تحت لائیں۔ آپ کی یہ کوشش آپ کی روحانی قوت میں اضافے اور مادی مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ 2022 میں آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی، آپ کا چھٹا گھر خالی رہے گا اور آپ کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ البتہ 20 اگست کے بعد آپ کو اپنی صحت کی طرف ضرور توجہ دینا ہوگی۔ لگنے والے 2 گرہن آپ کی صحت کے معاملات میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ شاید آپ کو تھوڑی بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ کی انرجی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے صحت کے مسائل زیادہ دیر پا نہ ہوں گے۔ ان مسائل سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر مکمل ایمان رکھا جائے اور اسی سے لو لگائی جائے۔ جب زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں تو انسان عیش و عشرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ روحانی طور پر اس عیش و عشرت کے جو اثرات ہیں وہ تو ہیں، لیکن بعض اوقات جسمانی سطح پر بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے اچھے دنوں میں برے وقت کی تیاری آپ کو ہر میدان میں فتح سے ہمکنار کرے گی۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔